اہم خبر شامل کرتے چلتے ہیں کراچی سے، جہاں گلشن کے علاقے مسکن چورنگی کے قریب دھماکے کی اطلاع ہے۔ ایک بار پھر بتاتے چلیں، گلشن اقبال مسکن چورنگی کے قریب دھماکے کی اطلاع آئی ہے۔ افضل خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی افضل، بتائیے گا کہاں ہوا ہے واقعہ؟ دیکھیے، گلشن اقبال مسکن چورنگی کے قریب خوفناک دھماکے کی آواز سنائی دی ہے اور اس کے بعد یہاں پر بھگدڑ مچ گئی ہے۔ ابوالحسن اصفہانی روڈ کے قریب کا یہ علاقہ ہے، جہاں پر کچھ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ وہاں پر ایک عمارت بھی گر گئی ہے اس دھماکے کے نتیجے میں، اور پولیس کو جیسے ہی اطلاع ملی ہے پولیس بھی موقع پر پہنچ رہی ہے، جبکہ ریسکیو ٹیمیں بھی جائے وقوع پر افضل یہ بتائیے گا، یہ جو عمارت گرنے کی اطلاع ہے، کیا یہ کوئی رہائشی عمارت ہے، کوئی کمرشل پلازا ہے، کیا ہے یہ؟ جی رہائشی عمارت ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ کچھ کمرشل شاپس وغیرہ اور آفیسز بھی بنے ہوئے ہیں۔ تاہم ابھی پولیس جو ہے وہ دھماکے کی نوعیت کو کنفرم نہیں کر پا رہی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ جائے وقوع پر ٹیمیں بھیج چکے ہیں، اور کچھ دیر بعد جو ہے وہ واضح طور پر کلیئر ہو سکے گا کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ بتائیے گا، یہ دھماکہ کیا عمارت میں ہوا ہے یا پھر اس دھماکے کی وجہ سے عمارت گری ہے؟ جی دیکھیے، فوری طور پر عینی شاہدین کی جانب سے یہ کنفرم نہیں کیا جا سکا کہ یہ جو ہے وہ دھماکہ عمارت کے اندر ہوا ہے یا دھماکے کی وجہ سے عمارت گری ہے، لیکن زوردار دھماکے کی آواز مسکن چورنگی ابوالحسن اصفہانی روڈ کے قریب جو ہے وہ سنی گئی ہے، اور اس کے بعد اس علاقے کے اندر بھگدڑ مچ گئی ہے۔ پولیس بھی جائے وقوع پر پہنچ رہی ہے، اور کچھ افسر معلوم ہو پایا ہے کہ آپ نے ویسے بتایا کہ پولیس سب یہاں پہ جائے وقوع پہ پہنچ رہی ہے، کہ اس عمارت میں کتنے لوگ جو تھے موجود تھے جب دھماکہ ہوا ہے؟ جی دیکھیے، اس عمارت کے اندر کچھ آفیسز ہیں، نیچے شاپس ہیں، بینکس ہیں، اور ممکنہ طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ بینک کے اندر یہ دھماکہ ہوا ہے، جس کے بعد جس عمارت کے اندر یہ بینک موجود تھا وہ عمارت زمین بوس ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہاں پر اس واقعے کے اندر کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی ہیں، اس کے علاوہ پولیس بھی موقع پر پہنچ رہی ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی طلب کیا جا رہا ہے تاکہ اس دھماکے کی نوعیت ہے اس کی جانچ کی جا سکے، اور دور دور تک آوازیں سنی گئی ہیں، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، خصوصاً جس مقام پر یہ دھماکہ ہوا ہے وہاں پر لوگوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی ہے۔ افضل ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلے، کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مسکن چورنگی پہ دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے بعد ایک عمارت منہدم ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مسکن چورنگی پہ دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں ایک عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید افسر جانے کے میں جوائن کے ہمارے نمائندے نذیر شاہ نے۔ نذیر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ اس عمارت میں ہوا ہے، عمارت کے پاس ہوا ہے، دھماکے کی نوعیت کیا ہے، اور اس عمارت کے حوالے سے کیا پتہ چل پایا ابھی تک؟ دیکھیں، ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کے نیچے، عمارت کے نیچے کمرشل جو ایکٹیویٹی بینک وغیرہ دکان ہے، تو بینک کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ کس چیز کا ہے اس کی نوعیت کا بھی نہیں پتا، لیکن ریسکیو ادارے کا کہنا ہے کہ اس سے 2 سے 3 منزلہ عمارت ہے وہ منہدم ہو گئی ہے، جبکہ ہماری ایس ایس پی ایسٹ ساجد امیر ستوزئی سے بات ہوئی ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس سے دوسری منزل جو ہے یہ گری ہے۔ تو ہم بھی اس وقت اس جائے وقوع کی جانب جا رہے ہیں، اور پولیس اور ریسکیو دونوں نے اس واقعے کی تو تصدیق کر دی ہے کہ دھماکہ بھی ہوا ہے اور عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا نقصان ہوا ہے اور کس چیز کا دھماکہ تھا اس کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ پولیس نذیر، کیا آپ کی ریسکیو اور پولیس اہلکاروں سے بات میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ ملبے تلے کچھ لوگ بھی دبے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کہنا بھی بالکل قبل از وقت ہے، لیکن یہ یقینی ہے کیونکہ بینک کے ٹائمنگ تھا، بینک میں بھی امپلائی موجود ہوں گے، اور اس کے علاوہ نیچے کمرشل ایکٹیویٹی تھی اور رہائشی عمارت ہے، تو یقینی طور پر اگر اس کی 2 منزلیں بھی گر جاتی تو اس میں کئی افراد دب سکتے ہیں اور کوئی زخمی یا جانی یا مالی نقصان اس میں ہو سکتا ہے۔ بالکل نذیر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے جو اس عمارت میں لوگ ہوں وہ محفوظ ہوں۔ کچھ اس عمارت کے حوالے سے، اس ایریا کے حوالے سے بتائے گا کہ اس ٹائم میں کتنا رشی ایریا ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں، اس ٹائم پہ کافی رش ہوتا ہے، اور ابھی ابتدائی ایک اور اطلاع بھی سامنے آ گئی کہ 2 زخمیوں کو قریبی
पटेल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, के जो धमाके के नतीजे में जख्मी हुए हैं। अब वो मलबे तले दबकर हुए हैं या इस धमाके से हुए हैं, ये तमाम सूरत अभी आना बाकी है। और काफी रश वाला एरिया है ये। गुलशन इकबाल में बहुत बड़ी तादाद में जो न सिर्फ कारोबारी दफातर, होटल और बैंक हैं, बल्कि वहाँ पर रहायशी इमारतें और फ्लैट्स वगैरह भी हैं। और ये जिस जगह पर हुए मस्कन चौरंगी के करीब ये जगह बताई जा रही है। तो नज़ीर, ये रेजिडेंशियल एरिया भी था, रेजिडेंशियल इमारत भी थी, लेकिन यहाँ पे शॉप्स भी हैं, यहाँ पे कमर्शियल एरिया भी है। तो अभी जो सुबह के 9 बजे, तो क्या यहाँ पे जो कमर्शियल इमारतें हैं क्या वो खुल चुकी हुई थी? यहाँ पे जो दुकानें थी वो खुल चुकी हुई थी इस टाइम पे? देखें, जो बेकरीज वगैरह या फिर बैंक होते हैं, मनी चेंजर होते हैं, वो तो सुबह अपने वक्त पे खुल जाते हैं। लेकिन जो दीगर जो दुकानें कपड़े वगैरह की इस तरह की होती हैं तो वो थोड़ा सा लेट खुलती है। जनरल स्टोर वगैरह अपने टाइम पे खुल जाते हैं क्योंकि स्कूल वगैरह भी खुले होते हैं और बच्चों के लिए जो आवाम है वो सामान लेती है। इस तरह दीगर जो मामलात हैं वो अमूर हैं वो सुबह के वक्त खोल दिए जाते हैं। तो ये रश वाला एरिया है और इस वक्त यही कहा जा रहा है कि रेस्क्यू इदारे, पुलिस, रेंजर्स, ये तमाम जाए वकूफ अगर पहुंच गए हैं। और इस पे सिर्फ सबसे पहले ये देखा जाएगा कि धमाका किस चीज का था। आया वहाँ पर कोई जनरेटर फटा है, सिलेंडर फटा है, या कोई बाकायदा ये तकरीब आ रही है दहशतगर्दी का नतीजा है। क्योंकि गुज़श्ता रोज भी श्री जीना कॉलोनी में इसी तरह का वाक़या पेश आया था, जिसकी बाद में तस्दीक हुई थी कि उसके अंदर बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। और अब यही देखना बाकी है कि इस जगह पर ये मामला आखिर पेश क्या है और इसके नतीजे में अब तक क्या नुकसान हुआ है। नज़ीर शाह हमारे साथ रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चले, कराची के इलाके मस्कन चौरंगी के करीब एक इमारत में धमाके की इतला है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक 2 जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। रेस्क्यू की और पुलिस की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच रही हैं। आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे इस हवाले से लम्हा ब लम्हा अपडेट्स आती रहेंगी। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर शाह, कुछ इस इलाके के बारे में बताइएगा। अबुल हसन इस्फहानी रोड, मस्कन चौरंगी, किस नौयत का इलाका है? देखिए, ये रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल इलाका है और गुलशन इकबाल जो कराची के मिडिल क्लास और पोश तबके के अफराद भी यहाँ पर रहते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, स्कूल, बैंक, मनी चेंजर तमाम है। यहाँ पर हर किस्म का कारोबार होता है, बेकरी से लेकर मीट शॉप तक और स्टेशनरी शॉप, ये तमाम यहाँ पर होती हैं। अब इसी इलाके में एनईडी भी है, आईबीए भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के आसपास का इलाका है ये। क्या इस हवाले से कोई ऐसी इतलात भी है कि स्टूडेंट्स इस ऐसे वक्त में अपनी फीस जमा कराने के लिए या इस नौयत के दीगर कामों के लिए बाहर निकलते हैं? तो इस हवाले से भी इतला है? देखें, ऐसा बिल्कुल होता है, मुमकिन होता है, लेकिन वही बात है कि हम पुलिस से मुसलसल रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्क्यू से भी कर रहे हैं और रेस्क्यू जिस तरह हमसे आहिस्ता आहिस्ता जैसे अपडेट आती जा रही है वो देते जा रहे हैं। अभी तक तो 2 जख्मियों का बताया गया। वो 2 जख्मी कौन थे? दुकानदार थे, बैंक एम्प्लॉय थे या बाहर से गुजरने वाले राहगीर थे। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी और जो तमाम जो रेस्क्यू की टीम है ये भी जाए वकुआ की जानिब रवाना हो चुकी हैं, कुछ टीमें पहुंच चुकी हैं। पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है तो इस हवाले से कोई भी पुलिस वाला इस वक्त फोन उठाकर इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा कि वहाँ पर हुआ क्या है। नज़ीर शाह हमारे साथ रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चले कि कराची के इलाके मस्कन चौरंगी पे जो धमाका हुआ है, उस धमाके के नतीजे में एक इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हुआ है। आपको एक बार फिर बताते चले, कराची के इलाके गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब धमाका हुआ है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक 2 अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जख्मियों की तलाश के लिए इमदादी टीमें रवाना हो चुकी हैं, पुलिस की टीमें पहुंच चुकी हैं वहाँ पे। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी नज़ीर। देखिए, अब मजीद इस तरह आई है, तकरीबन 5 के करीब इसमें अब तक जख्मी सामने आए और इतराफ की इमारतों के शीशे भी बता रहे कि टूट गए, इतना जोरदार धमाका था। और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ हिस्सों में ये धमाका सुना गया। इस वक्त रेंजर्स भी वहाँ पर पहुँच चुकी है, रेस्क्यू का अमल जारी है। जो ईदी इंफॉर्मेशन है और शिफा उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ये धमाका हुआ जिसपे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। अब मुतअद्दिद अफराद की तादाद कितनी है ये जैसे जैसे पहुंचते जा रहे हैं, जैसे पहले 2 थे अब मजीद 3 हुए तो 5 हो गए। नाज़रीन को बताते चलेंगे जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाएगी और जो सूरत हाल सामने आती जाएगी। अभी हमारे वो नाज़रीन
जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, हम उनको बताते चलें कि कराची में गुलशन इकबाल का इलाका, जहां पर मस्कन चौरंगी के करीब धमाका हुआ है और उस धमाके के नतीजे में एक बिल्डिंग जो है उसके हिस्से का बिल्डिंग का एक हिस्सा जो है वो मुनहदिम हो गया है। ये रिहायशी बिल्डिंग थी जिसके नीचे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी थी और साथ में ये वो एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा रशी एरिया है। जब ये धमाका हुआ तो इस धमाके की आवाज़ दूर दूर के इलाकों तक भी सुनी गई और इस धमाके के नतीजे में जो आसपास की बिल्डिंग्स थी, जैसे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह में बता रहे थे, उनके शीशे भी टूट गए और साथ में जो रेस्क्यू टीमें हैं वो रवां दवा हैं जबकुआ की जानिब। और अब तक जो इतलात हैं वो ये है कि 5 अफराद हैं वो इस धमाके के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। जी नज़ीर। हाँ बिल्कुल, देखिए ये तकरीबन 5 अफराद हैं और इस वक्त बिल्डिंग की एक और फुटेज हमने हासिल की है जिसपे देखा जा सकता है कि बुरे तरीके से इमारत में टूट फूट हुई है। उसका हिस्सा जो है मुकम्मल तौर पर टूट गया है और इसके नीचे बैंक भी है, दीगर इमारतें भी हैं, दीगर दुकानें भी हैं और ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है। ये इसके 2 फ्लोर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, लेकिन ये अभी अपनी जगह पर बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये मुनहदिम नहीं हुई है और ये किसी वक्त भी ये बिल्डिंग गिर सकती है क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन है उसको नुकसान पहुंचा। नज़ीर, आप बता रहे हैं कि इस इमारत से मुत्तसिल इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और उनमें भी दरारें पड़ गई हैं। क्या उनमें मौजूद रिहायशियों को बाहर निकाला जा रहा है? देखिए उनमें जो मौजूद रिहायशी है वो तमाम वैसे ही बाहर आ चुके हैं। उन इमारतों के शीशे टूट गए और वहाँ पर इस वक्त जो आम आवाम है वो भी इस वक्त रेस्क्यू के अमल में मसरूफ है और उनकी कोशिश यही है कि इस वाक़े में अगर कोई शख्स दबा है तो उसे निकाला जाए और अगर कोई जख्मी है तो उसे फौरी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो यहाँ पर नज़ीर हमारे साथ रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चले, कराची के इलाके मस्कन चौरंगी में धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में एक इमारत मुनहदिम हो गई है। इस इमारत मुनहदिम होने के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 5 अफराद जख्मी हुए हैं जिनको करीबी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। धमाका शदीद था, उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई और इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूट गए। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, ये बताइएगा कि वैसे तो जो हम फुटेज में देख रहे हैं ये कसीरुल मंजिला इमारत है और रेजिडेंशियल इमारत नज़र आ रही है बज़ाहिर। क्या जो जिस इमारत में धमाका हुआ है वो इससे मुत्तसिल थी या ये कोई अलग बिल्डिंग थी या इसी बिल्डिंग कैसा थी? नहीं, देखिए ये जो मैंने देखा है तो ये तकरीबन 4 मंजिला इमारत है जिसके बिल्कुल कॉर्नर पर ये धमाका हुआ है और उस धमाके के नतीजे में पहली और दूसरी मंजिल को शदीद नुकसान पहुंचा है। उसके ब्लॉक्स उगड़ कर सड़क पर जा गिरे हैं और इस हादसे में जितने जख्मी हुए हैं उनको बिल्कुल करीबी अस्पताल है पटेल अस्पताल गुलशन में जो है वहाँ पर मुंतकिल किया गया है क्योंकि फौरी तिब्बी इमदाद के लिए पहले प्राइवेट अस्पताल ले जाया जा सकता है, उसके बाद फिर इनको जिला अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट जो होते हैं तो उसमें सरकारी अस्पतालों में ले जाना लाजमी होता है जहाँ पर बाकायदा सरकारी रिपोर्ट बनाई। जैसे आपने बताया कि जो इमारत थी ये 4 मंजिला इमारत है और इस धमाके के नतीजे में जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है वो शदीद मुतासिर है, लेकिन जो धमाका हुआ है वो इमारत के एक कोने में हुआ है जिसकी वजह से इमारत का एक हिस्सा जो है एक कोना है वो मुनहदिम हो गया है। तो क्या बताया जा रहा है कि इमारत के अंदर हुआ था धमाका, जो रिहायशी पार्ट पोर्शन है वहाँ पे धमाका हुआ है या जो नीचे कमर्शियल एरिया है उसमें हुआ है? ये देखिए हमारे पास जो इब्तिदाई इतला आई थी वो ये बताया गया था कि नीचे इसके बैंक है, बैंक के अंदर ये धमाका हुआ है, लेकिन ये कि कुछ पुलिस या किसी जो रेलिवेंट पर्सन है, जो रेलिवेंट ऑफिसर है, उसके वर्जन के बगैर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन फौरी तौर पर जो हमें इतलात मौसूल हुई थी उनका ये कहना था कि बैंक के अंदर हुआ है और इतना शदीद था धमाका कि बहुत दूर दूर तक इसकी आवाज़ें सुनी गई। हमें शहरियों की जानिब से भी कॉलें आई कि किसी जगह से धमाके की आवाज़ आई है और उसके बाद पता चला कि क्योंकि इस धमाके की शिद्दत का जो अंदाज़ा है वो इस इमारत को देख कर लगाया जा सकता है क्योंकि जो इमारत जिस तरीके से टूटी है, टूट फूट का शिकार हुई है, तो ये इतना आसान नहीं होता। नॉर्मल अगर आप दस्ती बम हैंड ग्रेनेड भी मारें तो इमारत पर निशान तो पड़ सकते हैं, लेकिन इमारत की जो फाउंडेशन होता है या पिलर होते हैं वो टूट नहीं सकते। ये बहुत मजबूत कंस्ट्रक्शन होती है और इस इमारत को देखकर भी ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से टूटी गई है इसका मतलब ये कि अगर ये तखरीबकारी या कुछ और मामला था तो इसके अंदर फिर कोई ज़्यादा बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है और